Now I got notification you are host now, and now I am able to share. Okay, sir. 41 attendees are currently there. Okay. First of all, we would like to apologize for the delay, and we would like to welcome our honorable speaker for the day two on the training, CA Kunal Kumar ji from Zoho Books. Kunal Kumar ji, without wasting much of time, you can safely take over, sir. Thank you so much. Thank you very much for giving me this opportunity. And I would like to thank committee of member in practice to providing me this opportunity. So I would like to share my screen and we'll discuss whatever we discussed yesterday. I hope you found yesterday's session very useful. So we were discussing about how to automate your accounting through Zoho Books. So in yesterday's session, we have discussed what is Zoho Books, how we set up our organization in Zoho Books, how we can import our opening balances in Zoho Books, and how we can manage day-to-day transaction in Zoho Books. So our today's agenda will see some live case studies. I'll be using importing bank in front of you, and you will see how we will do manual import or through Excel import in Zoho Books. We'll be seeing how we file GST returns through Zoho Books, GSTR1, GSTR3B. How do we do reconciliation with the Zoho Books? And we'll see about some more automation which are available in Zoho Books. We'll see how we can manage our TDS through Zoho Books because TDS is also one of the important compliances. Then we will see how we pass journal entries in Zoho Books and report section, how we can access various reports like balance sheet, P&L, trial balance, compliance report, GST report, TDS reports, and audit trail report. There are multiple reports, how we can access those reports in Zoho Books. So I'll see step by step, and later on I'll be taking your questions also. If you have any questions relating to Zoho Books implementation, migration, or any kind of questions relating to Zoho Books, then definitely I'll be happy to answer those questions. So, so I have already shared in last session that it is an initiative of committee for member in practice that Zoho app is free for chartered accountants. You can use Zoho Books, Zoho Practice, Zoho Expense, Zoho Payroll, and Zoho Inventory as a free of cost for 3 years. And I also recommended all my professional colleagues to use this benefit and implement all these software in their CA firm, or even you can also implement these things or these softwares for your clients also and generate business also. So we have also discussed in last session how to migrate from Tele to Zoho Books. Invoice automation we have already discussed. We have also discussed about setup and implementation. So our today's agenda is about connected banking. So first I'll start with what are the automations that are available in Zoho Books that we have already discussed, but still I would like to highlight some 9, 10 points again. What things or what points we can automate through Zoho Books. So number one point, you can create and send invoice to your clients. You can create a recurring invoices, so you can automate this task through Zoho Books. Second important thing, what you can automate your payment reminders to whatever invoice are overdue. जो भी invoice आपके overdue हो जाते हैं उसके लिए you can send automatic payment reminders, because you know as a chartered accountant sometimes we feel we are busy in our work, in day-to-day work, talking with clients, doing the compliances, all those things we feel कि हम उसमें ज़्यादा busy हैं. Client को invoice भेज दिया, then उसको कोई follow up करने वाला ही नहीं है. So this thing can be automated through Zoho Books. Third thing which we can automate is about bank feeds. If you are using partners bank like HSBC, Kotak Mahindra, Yes Bank, तो जो भी आपकी बैंक ट्रांजेक्शन्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी जोहो बुक्स के अंदर आ जाती है. तो इंस्टेड ऑफ recording each and every transaction, you can save your lot of time by connecting your bank account, your accounting software with your bank. अगर हम अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ही अपने बैंक के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वी कैन वर्क सीमलेसली एंड वी कैन improve our productivity. Third, you can fourth point, what you can do, you can apply transaction rules.
हाउ मेनी सीए पुष्पलता जी का क्वेश्चन है, हाउ मेनी जो एप्लीकेशंस अवेलेबल इफ क्लाइंट वांट टू परचेज। सो यू नो, जो के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस अवेलेबल है। अगर मैं आपको जो की साइट पर लेकर जाऊं, आपको जस्ट अ सेकेंड। अगर आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही हो, सो यू कैन सी जोहो इज वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, एंड जोहो के पास बड़े सारे एप्लीकेशंस हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। जोहो सीआरएम, जोहो बुक्स, जोहो पीपल, जोहो मेल, जोहो क्रिएटर। जो हम जीमेल यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ वी कैन यूज जोहो मेल ऑल्सो, एंड वी कैन सेव अवर लॉट ऑफ कॉस्ट ओवर देयर। बट इन फाइनेंस सूट, अगर हम फाइनेंस की बात करें, तो इन फाइनेंस सूट जोहो के पास, जिसको हम जोहो फाइनेंस सूट बोलते हैं या जोहो फाइनेंस प्रोडक्ट्स बोलते हैं, आई होप आपको स्क्रीन शो हो रही होगी। सो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी कैन हेल्प बिजनेसेस और वी कैन इम्प्लीमेंट जोहो फाइनेंस सूट फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन इन आर बिजनेस। सो जोहो इनवॉइस है, जोहो बुक्स है, जोहो इन्वेंट्री है, जोहो बिलिंग है, जोहो एक्सपेंस है, जोहो चेकआउट एंड जोहो पेरोल है। अभी हम जो आज का सेशन है हमारा, वो जोहो बुक्स पर है। जो इन्वेंट्री इज एंड टू एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। जो बिलिंग, अगर आपका बिजनेस सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पर है, अगर आप नेटफ्लिक्स की तरह है, या अगर आप कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जहां पर आप मंथली बेसिस पे रिकरिंग इनकम चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट से, तो इन दैट केस यू कैन चेक जोहो बिलिंग। जो बिलिंग इज फॉर सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग वेब होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, कई लोग इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो दे कैन गो फॉर जो बिलिंग। और इवन दे कैन अटैच देयर कस्टमर क्रेडिट कार्ड एंड ऑल दीज थिंग्स एंड ऑटोमेटिक, ताकि उनके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाए और जो सब्सक्रिप्शन है वो चलता रहे। सो दैट इज फॉर जोहो बिलिंग। जोहो एक्सपेंस टू मैनेज डे टू डे एक्सपेंसेस इन बिग ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं एंड दे आर ऑन ट्रेवल, they are on they do lot of staff expenses, so in that case you can check for Zoho expenses. And the best part is all these software work in integrated manner, synchronized manner. Whatever entry you record in Zoho expense, that will also be posted into your Zoho books. Even Zoho checkout is for payment page, it's a payment page. And Zoho payroll is for employee salaries, their payroll, their parent salaries, deductions, PF, ESI, to manage all these statutory compliances. You can check Zoho payroll. So these are the software for Zoho application. So हर सॉफ्टवेयर अलग है। अब आपका क्लाइंट या आप अपने लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं, हर किसी की प्राइसिंग अलग है। और अगर आप सारे सॉफ्टवेयर जोहो के यूज करना चाहते हैं, तो देर इज वन मोर ऑप्शन, यू कैन गो फॉर जोहो वन। तो जोहो वन का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जोहो वन के अंदर आपको जितने भी जोहो के फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, लीगल, यू कैन क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन साइन डिजिटली, देन यू कैन गो फॉर जोहो वन, अगर किसी को सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स कम अगेन टू माय प्रेजेंटेशन। So we were talking about what are the automations, transaction rules, vendor payment you can make directly with the partner bank. You can make direct payment, vendor payment from Zoho Books. You can directly file GSTR 1 and GSTR 3B. मैंने कई बार देखा है चार्टेड अकाउंटेंट्स को या जो अकाउंटेंट्स हैं उनको, वो कैसे जीएसटी फाइल करते हैं। दे सेंड देयर टेली डेटा और दे सेंड देयर एक्सेल फाइल। देन उस एक्सेल फाइल को हम जीएसटी पोर्टल पर वन बाय वन या एक्सेल फैसिलिटी के थ्रू इंपोर्ट करते हैं। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग Zoho बुक्स? अगर आपने सारा सेल रिकॉर्ड कर रखा है, तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन वन बटन एंड you can push all your GST data from Zoho Books to GST portal. If you have created all your sale invoices, अगर आपने सारे sale invoices Zoho Books से बनाए हैं, तो what you can do, you can just do one click and push all your sales invoice data to GSTN portal. So this is the facility available. Similarly, you can import a GSTR2B from GST portal to Zoho Books.
आप उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यू कैन मैनेज योर डॉक्यूमेंट्स, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। यू कैन शेड्यूल योर रिपोर्ट्स, अगर आप वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे यू वांट टू चेक योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एनी पर्टिकुलर थिंग, एनी पर्टिकुलर expense or any particular customized report which you have created, then you can schedule that report। और वो रिपोर्ट हर महीने जो भी, जिस भी आपने यूजर को असाइन किया होगा या जिसको भी दिया होगा उसको मेल पर आएगी वो report। कोई भी अगर सीनियर है उसको हर महीने, हर वीकली अपना पीएनएल देखना चाहते हैं, तो दैट you can do with Zobooks by doing scheduling reports। You can create recurring invoices, recurring bills, and even recurring journal entries। Recurring journal entries हम कर सकते हैं, setting up workflow। तो these are all automation which are available in Zobooks। Okay, so now let's move further। So today first we will talk about, आज हम एक practical case study लेते हैं और उस पर हम काम करेंगे। Just a second। यस, आई होप आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, स्क्रीन दिख रही होगी। और हम यहाँ पर एक प्रैक्टिकली केस स्टडी लेंगे कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म हाउ वी कैन यूज Zobooks। सो दिस इज द ट्रांजेक्शंस आई हैव टेकन, दीज आर द डमी ट्रांजेक्शन। और सिमिलरली मैंने एक डमी बैंक स्टेटमेंट लिया है जिसको हम Zobooks में आज इंपोर्ट करेंगे और फिर इन डमी ट्रांजेक्शंस को देखेंगे कि कैसे ये मैच होती है ऑटोमेटिक, क्या ऑटोमेशन अवेलेबल है। सो वी विल सी दिस one by one। So this is a dummy transactions, sales transaction, purchase transaction, and some expenses I have taken. And I have also created one dummy bank statement. Let me show you that also। Because in last session, people were asking ki how do we import bank statement and how we can do automation. So we can see this today। So I hope you can see one bank statement also which I have created। This is a dummy bank statement। सो विल बी व्हाट वी विल बी डूइंग टुडे, हम इस बैंक स्टेटमेंट को दो बुक्स में इंपोर्ट करेंगे और जो भी इसमें ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं, यू कैन सी यहाँ पर ये सारी ट्रांजेक्शन्स आ रही है। और मैंने जोमेटो ओला उबर भी जान के यहाँ पर लिया है ताकि हम ट्रांजेक्शन रूल्स लगाकर देखें कि क्या जोहो उसको अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या मशीन लर्निंग से उसे पकड़ पा रहा है, उसे फेच कर पा रहा है या नहीं। तो ये एक बैंक स्टेटमेंट है जिसका टेम्पलेट भी Zobooks के अंदर अवेलेबल है। यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर एंड यू कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ टेम्पलेट एंड इंपोर्ट इनटू Zobooks। अदरवाइज अगर आपका पार्टनर बैंक है तो जो फीड्स है वो ऑटोमेटिक आ जाती है। सो नाउ लेट्स मूव टू Zobooks। यस, आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन नाउ। और आज मैं Zobooks का वो प्लान यूज कर रहा हूँ जो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर्स के लिए फ्री है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यू कैन क्लिक ऑन योर प्रोफाइल फोटो एंड यू कैन सी, नॉट ऑन प्रोफाइल फोटो, यू कैन क्लिक ऑन द नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम, एंड यू कैन सी यहाँ पर आपके पास आ रहा है आई हैव क्रिएटेड दिस डमी ऑर्गेनाइजेशन ICAI कस्टम प्लान। So this is a free plan which are available to all the chartered accountants। and ये free plan कोई स्टैंडर्ड प्लान नहीं है, ये हायर प्लान है जोहो का जो चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए प्रोवाइड किया गया है। तो आई थिंक अगर हम जोहो बुक्स की प्राइसिंग में जाएं तो यहाँ पर प्राइसिंग के अंदर जो एलीट प्लान है वो यहाँ पर मेंबर्स को दिया गया है। तो आप देख सकते हैं एलीट प्लान इज समथिंग अराउंड 5,000 रुपीज पर मंथ। सो इफ यू आर गोइंग टू बाय दिस प्लान तो आपको ये एटलीस्ट 5,000 रुपये पर मंथ का पड़ता है। तो आई थिंक यू आर गेटिंग दिस प्लान और सो आई थिंक यू ऑल शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस। सो नाउ आई एम इनटू दिस Zobooks और मैं यहाँ पर सबसे पहले बैंकिंग सेक्शन पर जा रहा हूँ। बैंकिंग सेक्शन पर जाने के बाद व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट वन बैंक अकाउंट।
सो यहाँ पर राइट हैंड साइड में यू कैन सी यू हैव गॉट टू ऑप्शन, वन इज इम्पोर्ट स्टेटमेंट एंड अनदर वन इज एड बैंक और क्रेडिट कार्ड. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्लिक ऑन एड बैंक. अगर आप पार्टनर्स बैंक के साथ हैं तो ऑब्वियसली यू विल सिलेक्ट स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एचएसबीसी, कोटक महिंद्रा, यस बैंक. बट अगर आपका ऊपर लिस्टेड बैंक में से नहीं है, so what you can do, you can click on add bank account manually. So what I'll do, I'll click on add bank account manually and I'll click add manually. तो मैं यहाँ पर एक बैंक सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स से आई हैव एचडीएफसी बैंक जिसका लास्ट है 1234. अकाउंट कोड इज नॉट मैंडेटरी, करेंसी इंडियन रुपीज, अकाउंट नंबर you can put your account number over here, but right now I am skipping this part because it's not mandatory. Again, bank name, IFSC code and description. So now once you fill all this information, you can click on save button. So once you click on save button, you can see no transactions are here. Yet to import bank statement. So what I'll do, I'll import this bank statement. I have also already created an Excel template. And if Excel template is not available with you, what you can do, you can click on this import statement. And from here, you can download this simple file. So you can still Excel template is available over here, so you can download this. So what I'm doing now, I have already created this Excel template. So I'll click on choose file and I'll choose from desktop and then I'll hit upload button. Just let me do that. तो अभी मैंने वो जो एक्सेल फाइल प्रिपेयर की है वो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर ली है. और नाउ व्हाट आई एम डूइंग, इसके बाद मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूंगा एंड देन नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर डेट के सामने डेट को मैप करना है, डिस्क्रिप्शन के सामने डिस्क्रिप्शन को मैप करना है. यू कैन सी यहाँ पर मैं कंप्लीट स्क्रीन शेयर करता हूँ एक बार. यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये मेरा डेट के सामने मुझे डेट को मैप करना है और जो मेरा डेट का फॉर्मेट है वो है MMDDYY. तो सेम मुझे यहाँ पर रखना है, मुझे यहाँ पर जाना है, इसको चेंज करना है. आई हैव टू सिलेक्ट MMDD and YY. दिस. तो मैंने यहाँ पर इस फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लिया है. विड्रॉल के सामने विड्रॉल को मैप करना है, डिपॉजिट के सामने डिपॉजिट को मैप करना है एंड देन डिस्क्रिप्शन के सामने आपको डिस्क्रिप्शन को मैप करना है. एंड यू कैन ऑल्सो सेव दिस सेटिंग्स. सो वंस यू डू दैट, व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन. जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर अभी एरर आ रहा है क्योंकि वो डेट का फॉर्मेट मैच नहीं कर रहा. तो हमें डेट के फॉर्मेट को मैच करना है. दिस वन MMDDYY. सो आई होप दिस विल वर्क नाउ. तो अभी नेक्स्ट पे जाते हैं. तो देखिए यू कैन सी ऑल आइटम्स ऑल ट्रांजेक्शन आर रेडी टू इम्पोर्ट. यानी जो 14 बैंक ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर इम्पोर्ट होने के लिए तैयार है. सो आई व्हाट आई डू, आई क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, इम्पोर्ट. सो यू कैन सी सारी ट्रांजेक्शन मेरी यहाँ पर आ चुकी. सो नाउ यू कैन सी मेरा HDFC बैंक की ऑल 14 ट्रांजेक्शन आर अवेलेबल ओवर हियर. अगर 100 ट्रांजेक्शन होंगी तो 100 आ जाएंगी. So you can see सारी transactions आ गई. अब once you see all these transactions, I have to categorize each transaction one by one. देखिए यहाँ पर विड्रॉल साइड पर आ रहे हैं, जोमेटो के एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ओला, उबर, रिन्यूअल चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, रेंट पेमेंट, वेंडर पेमेंट. ये सारी मेरी अनकैटेगराइज जितनी भी ट्रांजेक्शन थी यहाँ पर आ गई. तो अब मुझे इन सारी ट्रांजेक्शन को मैप करना है वन बाय वन. और इवन मुझे
जो मैप करने के साथ साथ मुझे कुछ इनवॉइसेस, सेल इनवॉइसेस भी बनानी है, परचेज इनवॉइसेस भी बनानी है और एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड करनी है। तो नाउ लेट्स डू दैट आल्सो। सो व्हाट आई विल डू, आई विल शेयर दिस स्क्रीन आल्सो विद यू। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास कुछ सेल्स ट्रांजेक्शन्स है, कुछ परचेज ट्रांजेक्शन्स है और कुछ एक्सपेंसेस, और उसी के हिसाब से मैंने बैंक स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करी है। सो नाउ व्हाट वी विल डू, as a chartered accountant, this is a case study for a chartered accountant. तो as a chartered accountant I am providing tax consultancy services to client X, जिसमें मुझे फीस चार्ज करनी है 20,000 रुपीज। So for what I'll do, I'll create one sale invoice और I'll also create item master, क्योंकि यहाँ पर मैं टैक्स कंसल्टेशन दे रहा हूँ, ऑडिटिंग सर्विसेज दे रहा हूँ और फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो बुक्स में जाऊंगा, एक आइटम्स में जाऊंगा, आइटम्स पर क्लिक करूंगा एंड आई सिलेक्ट न्यू आइटम। न्यू आइटम पर जाने के बाद सर्विसेज पर जाऊंगा और मैं दे रहा हूँ टैक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज, टैक्स कंसल्टेंसी। उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊंगा, SKU I don't have to select, unit you can leave because we are providing services, SAC code is mandatory। तो what I'll do, I'll go to this SAC code और मैं यहाँ सर्च बटन पर क्लिक करूंगा and then I'll select tax। So you can see tax services, corporate tax consultancy, individual tax consultancy. So you can select a SAC code according to your requirement. So I am providing here to individual. So I'll select 998232. So I'll put sale price over here. You can put any price, and once whenever you are creating invoice, you can change this price also. Purchase price, you can uncheck this because we are providing services and not purchasing it from anywhere. And next we'll select default tax rate. So I believe 18% tax rate is applicable on this, CGST and SG in case of intrastate and interstate. So you can see I have created one item and I'm clicking on save button. So this item has been created. Now what I have to do, I have to create one sale invoice for this party. I have provided tax consultancy services to client X, bill rupees 20,000. So I'll come to Zobooks again and I will hit on sales button and I will create this invoice। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, न्यू पर क्लिक करूंगा, मेरा पहला कस्टमर है ये, तो न्यू कस्टमर पर जाऊंगा। सो आई सिलेक्ट, अगर कॉर्पोरेट है तो बिजनेस और अगर इंडिविजुअल है तो यहाँ पर, तो क्लाइंट नेम इज एक्स, तो मैं यहाँ पर रख दूंगा क्लाइंट एक्स। सो यू कैन सी डिस्प्ले नेम इज क्लाइंट एक्स। You can put his mobile number, email ID for email purpose. I'm skipping this part right now, but you can do that। हम यहाँ पर email डालेंगे और उसका मोबाइल नंबर डालेंगे, और even you can integrate your WhatsApp also। तो जो इनवॉइस है वो उसके WhatsApp पर भी जाएगा। और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, तो आई एम सिलेक्टिंग एज अनरजिस्टर्ड। अगर कस्टमर सामने वाला GST रजिस्टर्ड होगा तो विल सिलेक्ट रजिस्टर्ड। अगर कॉम्पोजिशन में होगा तो कॉम्पोजिशन, कंज्यूमर है तो कंज्यूमर, ओवरसीज फॉरेन क्लाइंट है आपका तो ओवरसीज, SEZ, डीम्ड एक्सपोर्ट, यू हैव टू सिलेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। तो आई एम सिलेक्टिंग एज अ कंज्यूमर। यू हैव टू पुट पैन कार्ड, करेंसी। लास्ट सेशन कोई मुझसे पूछ रहा था कि क्या करेंसी चेंज कर सकते हैं। जो जोबुक्स का फ्री प्लान है उसमें तो हम नहीं कर सकते, लेकिन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे पास जो प्लान अवेलेबल है उसमें हम कोई भी करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग हायर प्लान ऑफ जोबुक्स। ओके, सो once it's done we can click on save button। तो you can see customer name is ready, place of supply is also there, invoice number अपने आप आ रहा है और उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आज की डेट का इनवॉइस है और मैंने इसे दी है सर्विस टैक्स कंसल्टेंसी। क्या प्राइस चार्ज किया है, 20,000 रुपीज था आई थिंक। तो मैं यहाँ पर जाकर चेंज कर लूंगा रेट 20,000। GST अभी मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतने ही पैसे बैंक के अंदर आ रहे हैं। तो 20,000 रुपीज का इनवॉइस है और मैं क्लिक करूंगा सेव बटन पर। सो यू कैन सी हाउ इजिली आई हैव क्रिएटेड वन टैक्स इनवॉइस। यहाँ पर मैंने टैक्स इनवॉइस क्रिएट कर दिया 20,000 रुपए का। डेट क्या थी, मैंने डेट यहाँ पर शायद गलत सिलेक्ट करी है। इट वॉज ऑन 1 अप्रैल 2024। सो आई सिलेक्ट 1 अप्रैल 2024। नाउ आई क्लिक ऑन सेव बटन। तो ये मैंने इनवॉइस क्रिएट कर दिया और अब मैं आ गया बैंकिंग पर।
मेरे पास अनकैटेगराइज ट्रांजेक्शन आ रही है। सो आई क्लिक ऑन दिस बैंकिंग और यहाँ पर मैं देखूंगा क्या वो 20,000 रुपये मेरे अकाउंट में आ रही है क्लाइंट टैक्स से। सो यू कैन सी ऑन 1 अप्रैल ही मेरे पास 20,000 रुपीज डिपॉजिट साइड पे आ रहे हैं। तो जैसे ही मैं इस डिपॉजिट पर क्लिक करूंगा और मैच ट्रांजेक्शन पर क्लिक करूंगा, तो यू कैन सी पॉसिबल मैचेस का ऑप्शन यहाँ पर दिखाता है। अभी इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि आई थिंक वो इनवॉइस ड्राफ्ट फॉर्मेट में। सो दिस इनवॉइस इज इन ड्राफ्ट स्टेटस राइट नाउ। प्लीज नोट, जब भी हम जो बुक्स में काम कर रहे हैं तो देयर शुड नॉट बी एनी इनवॉइस इन ड्राफ्ट फॉर्मेट। ड्राफ्ट फॉर्मेट में यू कैन सी देयर इज नो जर्नल एंट्री, कोई भी जर्नल एंट्री नीचे नहीं हो रही। सो एवरी इनवॉइस शुड बी इन फॉर्म ऑफ मार्क एस एन। जैसे ही मैं इसे मार्क एस एन पे क्लिक करूंगा, दिस इनवॉइस हैव बिकम ओवरड्यू। So once you come to your dashboard also, so you can see your overdue amount. So as a business owner, if you are running a farm, so you can completely see whatever amount is overdue. Or further, you can also check and you can also click this amount is overdue by more than 45 days. So you can click here and you can see ये अमाउंट कितने दिन से ओवरड्यू हो गया है, इसका 45 डेज से ओवरड्यू हो गया। तो अभी वापस आते हैं बैंकिंग में। बैंकिंग पर जब हम आते हैं तो वी कैन सी देयर आर 14 ट्रांजेक्शंस। सो वंस वी क्लिक ऑन दिस 20,000 रुपीज, सो यू कैन सी ये ऑटोमेटिक मैच बता रहा है, आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपके बैंक अकाउंट में 20,000 रुपीज आए हैं। तो क्या ये इसी के हैं, क्या ये इसी इनवॉइस से रिलेटेड है? जो बुक्स का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग ये बता रहा है आपको कि यस, कि क्या मैं इस ट्रांजेक्शन को इससे मैप कर दूं, तो विल से यस। विल जस्ट रीड कि हाँ क्लाइंट एक्स का इनवॉइस है, उसी की पेमेंट है, एंड विल हिट ऑन मैच बटन। सो वंस वी हिट अ मैच बटन, यू कैन सी कि ये जो इनवॉइस जो ओवरड्यू था, ये ओवरड्यू के स्टेटस से हट के पेड स्टेटस में कन्वर्ट हो गया। सो यू कैन सी दिस इनवॉइस नाउ इज इन पेड स्टेटस। Further, you can also come to your dashboard, so your overdues are zero. You can also check your reports. You can also check your P&L for this year, and you can see your P&L is ready. Sales is 20,000, and we have not recorded any expense. So everything is synchronized. We don't have to choose multiple things कि हम Excel पर पहले invoice बना रहे हैं, फिर उस Excel को हम Tally में रिकॉर्ड कर रहे हैं, और देन फिर हम वहां से अपना चीजें मैनेज कर रहे हैं। तो मल्टीपल चीजें करने की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली क्रिएट योर इनवॉइस फ्रॉम हियर। यू कैन फाइल योर जीएसटी रिटर्न्स। इवन इफ यू गो टू जीएसटी फाइलिंग रिपोर्ट्स, तो अगर मैं यहाँ पर इसे अभी मैंने अनेबल नहीं करा, मैं इसे अनेबल करूंगा तो यहाँ पर ये शो करेगा सारी चीजें। सो लेट मी कम टू मोर ट्रांजेक्शन्स। लेट्स डू मोर ट्रांजेक्शन्स। So I have recorded one transaction. Similarly, on 5th April, you have provided auditing services to client Y and invoice rupees 30,000. So you can do again, you can create your item. Similarly, services, you can select auditing services or only auditing, and you can select relevant SAC code like financial auditing services. SAC code is 998221. Again, let's say we are charging 25,000 rupees. Purchase price is 0, GST rate is 18%. So now what I'll do, I'll create one more invoice for my client Y. So I'll select new customer. Now I'll select client Y. Display name is Y. Customer is unregistered. Save. This invoice is for date 5th April. Amount is rupees 30,000. So I hope you can manage this now and we can move further. So similarly, out of scope, or we will hit on save button and we'll click on mark as send and we'll come to banking. And banking, there are 13 uncategorized transaction. तो अब हम यहाँ पर देखेंगे 30,000 रुपये आ रहे हैं क्लाइंट वाइफ से। जैसे ही मैं इस 30,000 पर क्लिक करूंगा तो अगेन ऑटोमेटिक मैच बता रहे हैं कि आपको 30,000 रुपये आपके क्लाइंट वाई से आए हैं क्या।
तो मैं करूंगा यस, तो मैच करूंगा। ओके, सो इन दिस वे यू कैन मैच योर रेवेन्यू। अभी हमने रेवेन्यू की बात करी थी, तो रेवेन्यू आप इस तरीके से मैच कर सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जिनकी हमारे पास बिल अवेलेबल नहीं होते, तो एंड वी डोंट वांट टू मेंटेन अकाउंट स्टेटमेंट फॉर दोज एक्सपेंसेस, हम उसकी अकाउंट स्टेटमेंट भी नहीं जनरेट करना चाहते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ रहा है जोमेटो, फिर आ रहा है जोमेटो, तो मैं अब जाऊंगा यहाँ पर जोमेटो पर क्लिक करूंगा और मैं इसे एक्सपेंस पर जाऊंगा। यहाँ पर मैच ट्रांजेक्शन आ रहा है, तो पॉसिबल मैच कुछ भी नहीं है क्योंकि इससे रिलेवेंट मैंने कोई बिल जो बुक्स को नहीं दिया, तो ना ही उसका कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग इसके बारे में पता कर पाएगा, तो मुझे मैनुअली करना पड़ेगा अभी फर्स्ट टाइम। तो मैं जाऊंगा कैटेगराइज मैनुअली में, एक्सपेंस को सिलेक्ट करूंगा और एक्सपेंस अकाउंट। यहाँ पर यू हैव टू नोट वन थिंग कि कुछ एक्सपेंस अकाउंट जो बुक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट ओपन है। आई शो यू दैट। सो यू कैन सी कि जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं, अकाउंटेंट मॉड्यूल पर क्लिक करते हैं, तो देयर आर चार्ट ऑफ अकाउंट्स। सो बाय डिफॉल्ट सम चार्ट ऑफ अकाउंट्स आर ऑलरेडी देयर। जैसे टैली के अंदर हमारे पास कुछ चार्ट ऑफ अकाउंट्स पहले से बने होते हैं कैश बैंक वगैरह की, तो सिमिलरली सम चार्ट ऑफ अकाउंट्स आर ऑलरेडी देयर, एक्टिव चार्ट ऑफ अकाउंट्स। यू कैन सिलेक्ट यहाँ पर एक्सपेंस वाले चार्ट ऑफ अकाउंट्स कौन से। यू कैन सी एडवर्टाइजिंग, परचेज, बैंक फीस, मर्चेंडाइज, लेबर, मटेरियल, तो these are automatically coming. Even if you want to create new, जैसे यहाँ पर मील्स एंड एंटरटेनमेंट आता है, न्यू अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो यू कैन क्लिक ऑन न्यू बटन, न्यू अकाउंट। और इवन इफ यू वांट टू इंपोर्ट इन बल्क, यहाँ पर इंपोर्ट चार्ट ऑफ अकाउंट का ऑप्शन आता है, यू कैन इंपोर्ट इन बल्क इफ यू आर माइग्रेटिंग फ्रॉम एनी अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। whether there is option to seeing particular ledger in Zoho Books, क्वेश्चन है आपका। यस, आप Zoho Books का लेजर बिल्कुल चेक कर सकते हैं। आप रिपोर्ट सेक्शन में जाएंगे, यू विल गो टू दिस रिपोर्ट सेक्शन एंड देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो डाउन एंड चेक जर्नल लेजर। यहाँ पर अकाउंटेंट मॉड्यूल में यू कैन सी जर्नल लेजर, डिटेल लेजर। तो जर्नल लेजर रिपोर्ट में जब आप जाएंगे तो यू कैन सिलेक्ट एनी एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल आई वांट टू चेक बैंक फीस एंड चार्जेस, तो मैं यहाँ पर ये पूरा बैंक फीस एंड चार्जेस का लेजर चेक कर सकता हूँ। ऊपर से पीरियड सिलेक्ट करूंगा, लेट्स से फॉर दिस ईयर, सो देयर इज नो ट्रांजेक्शन एट ऑल राइट नाउ। ओके, सो इन दिस वे यू कैन मैनेज, यू कैन चेक और पर्टिकुलर लेजर। ठीक है। Sir, I have question regarding GST filing. A client is involved in 0% supply. When we push transaction to GST portal, it go to 8A8B, 8C, 8D nil supply instead of B2B and or B2C. Is there any way to fix? मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा आपके साथ, मुझे देखना पड़ेगा एक बार। So I'll come to that. Okay. सो नाउ हम कर रहे थे बैंकिंग के अंदर, हम गए थे, हम सारी ट्रांजेक्शन्स को कैटेगराइज कर रहे थे। तो एट अ टाइम बस आपको कुछ नहीं करना, सारी ट्रांजेक्शन्स को कैटेगराइज करना है। तो आई कम टू दिस जोमेटो वाला ट्रांजेक्शन और आई क्लिक ऑन दिस 3000 बट रुपीज पर, और मैं एक्सपेंसेस पे जाऊंगा और ये एक्सपेंसेस पर्टिकुलरली मील से रिलेटेड है, मील्स एंड एक्सपेंसेस। तो मैं मील्स एंड एक्सपेंसेस सेलेक्ट करूंगा। डेट ऑटोमेटिक आ रही है, सैप कोड जरूरत नहीं है। अमाउंट ऑटोमेटिक आ रहा है। जीएसटी ट्रीटमेंट लेट से इस पर कोई भी हमें क्रेडिट नहीं लेना, तो मैं यहाँ पर इसे आउट ऑफ स्कोप सिलेक्ट कर दूंगा और मैं यहाँ पर हिट करूंगा सेव बटन पर या सेव बटन पर, यस। और अगर कोई अटैचमेंट है तो वो मैं अब यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो आई क्लिक ऑन सेव बटन। जैसे ही मैंने यहाँ सेव बटन क्लिक करा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कैटेगराइज ट्रांजेक्शन व्हेन करके। ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि क्या मैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन रूल्स लगा दूं कि अमाउंट अगर इक्वल टू 3000 है और अगर उसमें कंटेन है ऐसी डिस्क्रिप्शन जोमेटो जैसी, तो क्या मैं इसे मील्स एंड एंटरटेनमेंट में डाल दूं। तो हम इसको कहेंगे कि अमाउंट आप छोड़ो, 3000 नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो, बस उसमें कंटेन होना चाहिए जोमेटो का नाम। अगर जोमेटो का नाम उसमें लिखा है तो आप
हम इसे एक रूल दे देंगे, नाम को जोमैटो टू मील्स एंड एंटरटेनमेंट। यानी जो भी खर्चे हैं हम जोमैटो वालों को उसको हम पोस्ट कर रहे हैं मील्स एंड एंटरटेनमेंट में। और हमने इस रूल को क्या कर दिया, ऊपर दो ऑप्शन आ रहा है, when all the following criteria match or any one of them, so you can apply multiple criteria also. So I am hitting on save button, तो मैंने एक रूल बना दिया। अब जोहो को रूल मिल गया, अब जोहो अपने आप देखेगा जब भी जोमेटो की ट्रांजेक्शन आएगी तो क्या उसे मील्स एंड एंटरटेनमेंट में डालना है, आपको पॉपुलेट करना चाहिए जोहो को। तो अब जोहो की एक और ट्रांजेक्शन आ रही है 20 अप्रैल को जोमेटो की। मैंने इस पर क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए ट्रांजेक्शन डिटेल पॉपुलेटेड बेस्ड ऑन जोमेटो टू मील्स, तो मैंने यहाँ पर एक रूल लगा रखा है। तो सब कुछ अपने आप कर रहा है, मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे बस सेव दबाना है। फिर से देखते हैं एक बार कोई और जोमेटो की ट्रांजेक्शन अगर है तो। जोमेटो की नहीं है, अब ओला उबर है। तो जैसे ओला उबर अगर लिखा हुआ आ रहा है तो मैं चाहता हूँ कि ये ट्रेवल एक्सपेंस में चला जाए। तो नाउ मैंने ओला पर क्लिक करा, एक्सपेंस पर गया, और एक्सपेंस अकाउंट यहाँ पर ट्रेवल क्या है यहाँ पर बना हुआ, यस ट्रेवल एक्सपेंस बाय डिफॉल्ट इज देयर। सो आई सिलेक्ट ट्रेवल एंड जीएसटी ट्रीटमेंट आउट ऑफ स्कोप इफ वी आर नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट। अगर बिल अवेलेबल है आपके पास तो यू हैव टू सिलेक्ट जीएसटी नंबर ऑल्सो। सो वंस वी डू दैट, हमें उसके बाद क्या करना है, हमें क्लिक करना है सेव बटन पर। और फिर से वो ट्रांजेक्शन रूल्स बताने की बात कर रहे हैं, तो मैंने इसको एक और रूल दे दिया। तो अगर आपने जितने ज्यादा मल्टीपल रूल्स दे रखे हैं, क्योंकि ट्रांजेक्शन रेकरिंग है, बार बार हो रही है, तो अब मैंने इसे रूल दिया डिस्क्रिप्शन कंटेन ओला। अगर बैंक स्टेटमेंट की नरेशन में ओला लिखा है तो इसे आप ओला टू ट्रेवल एक्सपेंस रूल नाम दे दिया मैंने इसे, और सेव कर दिया। तो नाउ अब नेक्स्ट टाइम जब भी ओला आएगा मेरी बैंक स्टेटमेंट में तो ऑटोमेटिकली यू कैन सी। और अगर आप चाहते हैं कि ये मेरे को ये भी काम ना करना पड़े, मतलब ये भी अपने आप कर दे, मुझे ये सेव बटन भी ना दबाना पड़े, तो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। बट इनिशियली आई वुड सजेस्ट यू कि आप ये देखें कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रांजेक्शन रूल्स वर्क कर रहे हैं। once you are satisfied, then you can tell Zoho to categorize it automatically। then यहाँ पर वो आपसे पूछेगा भी, सीधा कैटेगराइज कर देगा। तो यहाँ पर अब हमने ट्रांजेक्शन रूल्स लगाया और इसे भी मैंने सेव कर दिया। तो यू कैन सी ओला की अब दोनों ट्रांजेक्शन कैटेगराइज हो गई है। सिमिलरली लेट्स से अब ये इंश्योरेंस रिन्यूअल पेमेंट है, अगर मेरे पास बिल अवेलेबल है तो आई रिकॉर्ड एज अ बिल। अगर बिल अवेलेबल नहीं है तो आई रिकॉर्ड इट इन एज अ इंश्योरेंस एक्सपेंस। सो आई क्रिएट अ न्यू अकाउंट अंडर एक्सपेंस इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। और इवन यू कैन क्रिएट अ सब अकाउंट ऑल्सो, अगर आप सब अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप सब अकाउंट भी बना सकते हैं। सो आई क्लिक ऑन सेव बटन, इंश्योरेंस जीएसटी ट्रीटमेंट राइट नाउ इट्स एन आउट ऑफ स्कोप, और मैंने इसे कर दिया सेव। तो देख रहे हैं आप सात ही ट्रांजेक्शन रह गई हैं जो कैटेगराइज करनी। उबर, उबर को भी मैं ट्रेवल एक्सपेंस में डालूंगा, अगेन जीएसटी आउट ऑफ स्कोप। बट अगर बिल्स अवेलेबल हैं तो आपको इसे यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना, यू हैव टू रिकॉर्ड दीज एक्सपेंसेस इनटू बिल सेक्शन। ओके, सो नाउ अब I have six transactions which I need to categorize. Next I have electricity bill expense. So यहाँ पर कोई भी डेबिट क्रेडिट के बारे में तो बात ही नहीं हो रही, because anyone, even if you are from non-commerce background or anyone you have basic knowledge ये किस ट्रांजेक्शन का कौन सा खर्चा है, तो बस वहां पे मैप करना, कुछ भी डेबिट क्रेडिट तो यहाँ पर हो ही नहीं रहा। तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन एक्सपेंसेस, और यहाँ पर एक्सपेंसेस में मैं चाहूंगा तो दिस एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। सो आई सी अगर इलेक्ट्रिसिटी का कोई अकाउंट बना हुआ है, यहाँ पर नहीं बना तो न्यू अकाउंट एक्सपेंसेस और जीएसटी आउट ऑफ स्कोप
and then I'll hit on save button. Similarly, rent payment, मैं आ जाऊंगा रेंट। अगर आपके पास रेंट का बिल आता है तो आई सजेस्ट यू कि आप उसे वेंडर में जाके बिल पहले ऐड करें, ताकि आप उसकी स्टेटमेंट देख पाए। तो अभी हम इसको रेंट को इसी तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं, रेंट पेमेंट और सेव। बार बार वो आपसे ट्रांजेक्शन रूल्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन रूल्स दे सकते हैं कि जब भी नरेशन में डिस्क्रिप्शन में रेंट लिखा है तो उसे रेंट एक्सपेंस में डाल दें। तो मैं यहाँ पर इसे रूल दे सकता हूँ कि अगर अमाउंट इतना है या इससे ज्यादा है तो मैं अमाउंट को हटा रहा हूँ। जब भी सिर्फ रेंट लिखा हो तो मैंने रेंट के लिए रूल बना दिया और सेव कर दिया। सो वेन एवर नेक्स्ट टाइम अगर कोई रेंट आ रहा है तो ऑटोमेटिकली वहां पर पोस्ट हो जाएगा। अब मुझे कुछ बिल्स रिकॉर्ड करने हैं, कुछ ट्रांजेक्शन और हैं। 4 ट्रांजेक्शन अभी भी अनकेटेगराइज है। रिपोर्ट्स में जाके मैं देखता हूँ अपना प्रॉफिट एंड लॉस, तो साफ साफ मुझे अपनी सेल दिखाई दे रही है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आ रहे हैं मेरे पास, इंश्योरेंस एक्सपेंस, मील्स एक्सपेंस, ट्रेवल एक्सपेंस। सो और नेट प्रॉफिट मेरे पास अपना निकल कर आ रहा है। आई कैन ऑल्सो शेड्यूल दिस रिपोर्ट। अगर मुझे रिपोर्ट हर हफ्ते चाहिए, मुझे अपने ईमेल पर मंथली चाहिए अपनी ईमेल पर, तो आई कैन ऑल्सो डू दैट कि कुणाल को दिस विल रिपोर्ट विल सेंड इन पीडीएफ और एक्सेल वट एवर फॉर्मेट। You can schedule this report also, and you can also share this with any other user in Zoho. ओके, इवन यू कैन फर्दर कस्टमाइज दिस रिपोर्ट अगर आपको कस्टमाइज करके देखना है। कस्टमाइज आई मीन उसे कि मुझे कंपेयर करना है पिछले पीरियड का, पिछले लेट से 3 महीनों का कंपैरिजन मुझे देखना है। तो क्या मैं वो देख सकता हूँ पिछले 3 महीने के कंपैरिजन? सो यस, आई कैन सी दिस। आई कैन कंपेयर दिस कि फरवरी में कोई बिजनेस नहीं हुआ, मार्च में नहीं हुआ, अप्रैल में 50,000 रुपीज का बिजनेस हुआ। और ये कंपैरिजन MIS रिपोर्ट यू कैन से एक बन रही है जो मंथ वाइज हमें कंपैरिजन दे रही है यहाँ पर। और आप कंपेयर कर सकते हैं पीरियड से, रिपोर्टिंग टैग से और प्रोजेक्ट से। सो इफ यू हैव क्रिएटेड एनी रिपोर्टिंग टैग, विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। या कोई आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और प्रोजेक्ट वाइज आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। अगर आप किसी पर्टिकुलर ब्रांच का देखना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई दिस फिल्टर एंड यू कैन यूज दिस एडवांस फिल्टर फॉर एनी ब्रांच। तो यहाँ पर एडवांस फिल्टर अवेलेबल है। अगर आपने जो बुक्स में ब्रांचेस क्रिएट करी है, यस्टरडे प्रीवियस सेशन जो हमने कल सेशन करा था उसमें ब्रांचेस का ऑप्शन नहीं आ रहा था, लेकिन जो के हमारे इस प्लान में ब्रांचेस का ऑप्शन भी अवेलेबल है। सो यू कैन क्रिएट, यू कैन अनेबल मल्टीपल ब्रांचेस ऑल्सो इन जो बुक्स। तो यहाँ पर जैसे ही आप अनेबल करेंगे तो आपसे GST नंबर मांगेगा आपकी दूसरी ब्रांच का, और आप मल्टीपल ब्रांचेस के लिए मल्टीपल इनवॉइस सीरीज भी जनरेट कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स कम टू बिल पार्ट। वी हैव ऑलरेडी सीन कि हम किस तरह से सेल्स को ऑटोमेट करेंगे, कैसे हम ट्रांजैक्शन रूल्स लगाएंगे। नाउ लेट्स सी हाउ वी रिकॉर्ड अवर बिल्स। अच्छा, वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन इनवॉइसिंग, यहाँ पर जैसे ही आप इनवॉइस क्रिएट करते हैं तो इफ यू वांट टू हिट दिस, यहाँ पर आप नीचे देखिए जर्नल भी बन रहा है। तो यू कैन सी यहाँ पर जर्नल एंट्रीज भी पास हो रहा है, आप नीचे जाके देख सकते हैं हर ट्रांजेक्शन का नीचे जर्नल एंट्री पास हो रहा है। इवन जो मैंने अभी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करे थे, परचेजेस में जाऊंगा, एक्सपेंसेस यू कैन क्लिक, यू कैन सी, यू क्लिक ऑन रेंट एंड यू कैन गो डाउन एंड सी रेंट अकाउंट टू SDFC, इलेक्ट्रिसिटी टू SDFC, travel to SDFC. So you can see journal entry is also available if you want to see any journal entry. Now let's see how we can record bills. Bills, there are two options. इवन कई मार्केट में ऐसे थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस भी अवेलेबल हैं जहां पर आप बिल्स को ऑटोमेटिकली जो बुक्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। वंस यू क्लिक अ फोटोग्राफ और अपलोड बिल ओवर हेयर, यहाँ पर जैसे ही आप अपलोड करते हैं तो भी बिल्स अपने आप जो बुक्स में आ जाते हैं। अपलोड का फीचर भी अवेलेबल। बट उस केस में आपका जो बिल है वो हैंड रिटन ना हो, आपका वो जो बिल है कंप्यूटराइज होना चाहिए, तब वो बिल आपका ऑटोमेटिकली जो बुक्स में आ जाएगा। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन रिकॉर्ड दिस ऑल दीज बिल्स।
So I have that dummy transactions. So I have purchased accounting software from vendor A for rupees 5,000 on 3rd April 2024. So I'll record this transaction on 3rd April 2024. कैसे रिकॉर्ड करेंगे इसे जोन में? बिल्स में जाएंगे, वेंडर, न्यू वेंडर, हेयर वेंडर ए, और डिस्प्ले नेम वेंडर ए, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आई एम स्किपिंग फॉर नाउ. लेट्स से वेंडर इज अनरजिस्टर्ड और मैंने सेव कर दिया. बिल कौन सी डेट का था? बिल था 3rd अप्रैल 2024. तो आई रिकॉर्ड दैट. बिल नंबर इज 1, लेट्स से 3rd अप्रैल. ओके, नाउ मुझे इसे डेबिट करना है इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक्सपेंस. तो यू डोंट हैव टू क्रिएट आइटम इन दिस केस. आपको कोई आइटम बनाने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू राइट. आइटम सिर्फ सेल्स के लिए बना सकते हैं आप, परचेज के लिए भी बना सकते हैं इफ यू आर ट्रेडिंग इन एनी गुड्स और समथिंग लाइक दैट. अब यहाँ पर आपको इस एक्सपेंस को किस अकाउंट में एक्स डेबिट करना है. तो लेट्स से मेरे पास एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का खर्चा है, तो आईटी एक्सपेंस में अगर मैं इसे डालना चाहूँ, अदरवाइज मैं न्यू अकाउंट भी क्रिएट कर सकता हूँ. सो आई डेबिटिंग इट इनटू आईटी एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस, जो कि बाय डिफॉल्ट चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आ रहा है. 5,000 रुपीज का अमाउंट है. जीएसटी अभी हम आउट ऑफ स्कोप ले रहे हैं क्योंकि वेंडर अनरजिस्टर्ड था, तो वैसे ही नहीं आ रहा. अगर कोई टीडीएस अमाउंट है इस पे, तो आप फर्दर यू कैन डिडक्ट टीडीएस ऑल्सो. तो यहाँ पर आपके पास टीडीएस टीसीएस का भी ऑप्शन आ रहा है कि आपको किस सेक्शन में अगर टीडीएस काटना है, क्योंकि इसी से आपकी टीडीएस रिपोर्ट्स भी जनरेट होगी, जो आपको मंथली बेसिस पे हमें 7th को टीडीएस पे करना होता है, और क्वार्टरली बेसिस पे जो हम रिटर्न्स फाइल करते हैं, तो यू कैन यूज दिस फीचर ऑल्सो. So you can also click on manage TDS and particularly map all TDS in sections also, कि आपको उसको किसके साथ मैप करना है. यहाँ पर पेंसिल आइकन अवेलेबल है, यहाँ से आप कर सकते हैं. So I'll do it later. I'll click on save as draft. So please note there should not be any invoice or any vendor bill in draft format. Draft format का मतलब उसका कुछ भी हमारे अकाउंटिंग में नहीं होगा. So I'll click on convert to open. So once we click on convert to open, you can come to your dashboard. This invoice, this bill is now in overdue status. You have to pay this bill. Now what I'll do, I'll go to this banking section and I'll see there are 4 uncategorized transaction. और यहाँ पर vendor A को software payment हुआ है 5,000 rupees. I'll hit on this. I'll click here and Zoho will automatically show best match for this. अगर मल्टीपल 5,000 के बिल होंगे तो फिर वो मल्टीपल भी शो करेगा, बट यहाँ पर अभी एक ही है, तो आई विल क्लिक ऑन मैच. तो ये ट्रांजेक्शन कैटेगराइज हो गया. नाउ आई कैन ऑल्सो चेक माई कस्टमर स्टेटमेंट और वेंडर स्टेटमेंट ऑल्सो. मैं परचेजेस में जाऊंगा, वेंडर्स में जाऊंगा. अभी मेरा एक ही वेंडर है, वेंडर ए. सो आई गो टू दिस स्टेटमेंट एंड आई सिलेक्ट दिस ईयर स्टेटमेंट. सो यू कैन सी दिस स्टेटमेंट ऑफ. यहाँ पर स्टेटमेंट आ रही है इस कस्टमर की. यू कैन मेल हिम, डाउनलोड दिस, ईमेल दिस. यू कैन सेंड एन ईमेल. ईमेल सेंड कर सकते हैं आप यहाँ से. You can download this in Excel, PDF, any format. Even you can also, sometime ऐसा भी होता है कि हमारा एक पर्सन है, वो कस्टमर भी है और वेंडर भी है. हमारा एक पर्सन है, क्लाइंट है, जो एक कस्टमर भी है और वेंडर भी है. सो इन दैट केस हम यहाँ पर जाएंगे वेंडर्स में या फिर कस्टमर्स में भी, उस पर्टिकुलर वेंडर को सिलेक्ट करेंगे. देन वी हैव ऑप्शन ऑफ क्लिकिंग मोर एंड विल क्लिक ऑन मोर एंड देन वी क्लिक टू लिंक टू कस्टमर. अगर हमारा सेम कस्टमर सेम वेंडर है, सो विल लिंक बोथ कस्टमर एज वेल एज वेंडर. सो आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस. नाउ मैं आपको एक और चीज बता रहा था कि अगर आप इनवॉइस में जाते हैं और अपना इनवॉइस यहाँ क्लिक करते हैं और एडिट बटन पर क्लिक करते हैं, तो देयर इज वन
मोर हिडन ऑप्शन जो नॉर्मली नहीं दिखता जब हम बहुत ज्यादा जोन में काम कर लेते हैं, देन वी विल एबल टू सी दैट। अगर आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर ऑप्शन आता है शो एडिशनल इंफॉर्मेशन। जैसे ही आप यहाँ शो एडिशनल इंफॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर बताता है कि ये किस हेड में यहाँ क्रिएट हुआ है, और यहाँ से आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। सो अंडर सेल्स इफ यू हैव मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, सेल्स के अंदर अगर आप मल्टीपल स्ट्रीम्स दिखाना चाहते हैं लाइक रेंटल इनकम और सेल्स अलग अलग दिखाना चाहते हैं, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। हाउ यू कैन डू दैट, मैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाऊंगा। आई गो टू चार्ट ऑफ अकाउंट्स और लेट्स से मेरी एक रेंटल इनकम आती है तो आई क्लिक ऑन न्यू अकाउंट और मैं यहाँ इसे इनकम में सिलेक्ट करूंगा, अदर इनकम, और लेट्स से मेरी रेंटल इनकम। सो आई क्लिक ऑन सेव बटन। नाउ आई विल गो and create new invoice. Even if you want to create separate invoice series for your invoice income, you can do that also. But here, let's say this client name is rental income customer, unregistered customer. So when you create invoice, अब आप जब इसका invoice create करेंगे rental income for rental income, so you don't want to show this income into your sales. So what you will do, you will click on show additional information, or instead of this sales account, you can select rental income. So you can do that. तो अब ये इनकम आपकी सेल्स में हिट नहीं होगी, आपकी रेंटल इनकम में हिट होगी। आस्किंग फॉर HSN कोड, यहाँ पर मैं रेंटल इनकम सिलेक्ट कर लूंगा। अभी के लिए आई एम सिलेक्टिंग जस्ट एनीथिंग, कुछ भी मैंने सिलेक्ट कर दिया और सेव एज ड्राफ्ट। सो यू कैन सी यहाँ पर रेंटल इनकम हो गया जनरेट और मार्क है सेंट। नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन योर रिपोर्ट्स एंड चेक योर PNL, तो यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर रेंटल इनकम आ रहा है बिकॉज मैंने अदर इनकम सिलेक्ट करा था। अगर मैंने उसे इनकम में सिलेक्ट करा होता तो इट विल कम अंडर सेल्स, सेल्स के नीचे, बट आई हैव सिलेक्टेड एज अ अदर इनकम, सो इट्स शोइंग एज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू कस्टमर वेंडर बिल। यू क्लिक ऑन परचेजेस एंड यू कैन क्लिक ऑन वेंडर्स। तो इस तरीके से सारी वेंडर्स की स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर तीन ट्रांजेक्शन जो अनकैटेगराइज हुई थी इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, वो वेंडर, और आई होप यू कैन डू ऑल दिस ट्रांजेक्शंस योरसेल्फ। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डाला, आउट ऑफ स्कोप, all this can be managed. Now let's move to more things, some complex transaction in Zoho. अब आजकल जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं दे वर्क ऑनलाइन, दे कलेक्ट पेमेंट ऑनलाइन फ्रॉम देयर कस्टमर्स एंड दे सेल सर्विसेज और गुड्स ऑनलाइन। तो हम जो पेमेंट्स कलेक्ट करते हैं उसके लिए हम रेजर पे, पेटीएम, इंस्टामोजो, पेटीएम, इन सारी चीजों को हम यूज करते हैं। So now the challenge is how to record a transaction in Zobooks when payment is received through payment gateway like Razorpay, Paytm, InstaMojo, and PayPal. Someone has asked ki, what is the difference between expenses and bills? So expenses और bills में ये फर्क होता है कि expenses में हम वो items को record करते हैं जिनके हमारे पास bills available नहीं होते, और बिल सेक्शन में जिनके भी हमारे पास बिल्स अवेलेबल होते हैं, CA का बिल है मेरे पास, कोई स्टेशनरी खरीदा है उसका बिल है मेरे पास,
तो मैं उनको रिकॉर्ड करूंगा इन बिल सेक्शन, इन बिल मॉड्यूल। बट इफ बिल इज नॉट अवेलेबल, फॉर एग्जाम्पल बैंक चार्जेस, बिल इज नॉट अवेलेबल, तो मैं उसे एक्सपेंस मॉड्यूल में रिकॉर्ड करूंगा। और ये आपको नोट करना है, जब आप बिल मॉड्यूल में किसी चीज को रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी कोई स्टेटमेंट जनरेट नहीं होती, अकाउंट स्टेटमेंट। लेकिन जब आप बिल सेक्शन में रिकॉर्ड करते हैं तो यू आर एबल टू फेच हिज अकाउंट स्टेटमेंट ऑल्सो। We'll also cover some portion of Zoho practice, the CRM module, how it will smooth our practice. Zoho CRM और Zoho Begin दो सॉफ्टवेयर हैं फॉर मैनेजिंग योर कस्टमर रिलेशनशिप। मैं आपको एक बार जस्ट वॉक थ्रू करा देता हूँ। आज का तो सेशन हमारा Zoho बुक्स पर है, बट मैं एक बार जस्ट क्विक आपको 2 मिनट में उसके बारे में दिखाऊंगा, Zoho Begin के बारे में। और सारे चार्टेड अकाउंटेंट जितने भी प्रोफेशनल कलीग्स हैं वो इसे यूज कर सकते हैं इन देयर बिजनेसेस। तो मैं यहाँ पर आपको शो करूंगा जोहो बिगिन एक बार। जोहो बिगिन जो यूज होता है बेसिकली फॉर अ सेल्स पाइपलाइन। सेल्स पाइपलाइन क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई कस्टमर इंक्वायरीज आ रही है, डेली बेसिस पे 10 इंक्वायरीज आ रही है, 5 इंक्वायरीज आ रही है, तो अब उसे मैन्युअली किसी डायरी पे, किसी रजिस्टर पर या किसी एक्सेल पर करना इज अ वेरी चैलेंजिंग और डिफिकल्ट पार्ट। यहाँ पर आप यूज केस देख सकते हैं। जोहो बिगिन के, जो बिगिन स्मॉलर वर्जन ऑफ जो सीआरएम। तो मैं यहाँ पर जैसे लीगल के लिए शो करता हूँ, क्योंकि लीगल और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थोड़ा सा मैच करते हैं। तो बिगिन फॉर लॉ फर्म, तो यहाँ पर बिगिन के बारे में बताया गया है और बिगिन की एक पाइपलाइन बनाई हुई है। पाइपलाइन का मतलब हुआ कि जैसे कोई केस आया आपके पास, तो वो केस किस स्टेज पर है, कि आपके पास आपने रिव्यू कर लिया, पेपर वर्क कर लिया, लिटिगेशन स्टेज पर है, या वो किस स्टेज पर है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा हम कैसे यूज कर सकते हैं कि मेरे पास कोई टैक्स ऑडिट की इंक्वायरी आती है, या कोई कॉर्पोरेट की, कंपनी इनकॉर्पोरेशन की इंक्वायरी आती है, तो मैं उसके लिए पहली पाइपलाइन बना सकता हूँ लीड, दूसरी फिर नेगोशिएशन, तीसरा प्रपोजल सेंट, चौथा फॉलो अप मेड, और फिर लीड वन, मतलब हमने जो क्लाइंट था वो आ गया हमारे पास, कन्वर्ट हो गया। तो उसको हम इस तरीके से यहाँ पर हम एक पाइपलाइन बना सकते हैं जोहो बिगिन के अंदर। सबके लिए मल्टीपल यहाँ पर आपको गाइड दी हुई है, यूज केसेस बताए हुए, सॉफ्टवेयर एजेंसीज के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए, रियल एस्टेट के लिए, सबके लिए। तो जोहो सीआरएम से छोटा वर्जन है जोहो बिगिन, और स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए ये काफी यूजफुल है। और उसके अंदर प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स भी दिए हुए हैं। यहाँ पर आप व्यू ऑल टेम्पलेट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट्स भी दिए हुए हैं। लेट्स से फॉर रियल एस्टेट है, तो रियल एस्टेट पीपल कैन ऑल्सो यूज, उनकी अपनी पाइपलाइन होती है कि कौन सी प्रॉपर्टी आई, कौन सी प्रॉपर्टी उन्होंने साइट विजिट कराई, और फिर उसके बाद उस क्लाइंट के साथ फॉलो अप करना, और ये सब नेगोशिएशन करना, साइट विजिट करना, ये सारे यहाँ पर पाइपलाइन दी हुई है। तो जोहो बिगिन इज फॉर मैनेज योर सेल्स एंड मार्केटिंग थिंग, यू कैन से दैट। सो आई होप अश्मीत जी आपको आंसर मिल गया होगा। एंड जोहो प्रैक्टिस इज फॉर प्रैक्टिस मैनेजमेंट। एक और क्वेश्चन है मिस्टर शंकरा शास्त्री जी का, कि इज देयर एनी ऑप्शन टू सेव द फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट पोस्ट कस्टमाइजेशन, लाइक इनवॉइस रिपोर्ट, वेंडर बिल रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस, लेजर बिल रिपोर्ट? यस, डेफिनेटली है। मैं आपको शो करता हूँ कैसे। लेट मी शो। आई होप यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन नाउ। हम जाएंगे रिपोर्ट सेक्शन पे, और लेट से मैंने ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट निकाला। एंड जनरली ड्यूरिंग ऑडिट या रिव्यू हम चेक करते हैं कि ट्रायल बैलेंस ओपनिंग कितना है, डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है, और क्लोजिंग कितना है। तो मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर जाऊंगा शो एंड हाइड कॉलम, पहले डेट रेंज सिलेक्ट करूंगा, पीरियड दिस ईयर, शो एंड हाइड कॉलम में मैं नेट डेबिट नेट क्रेडिट हटाऊंगा। मैं लूंगा ओपनिंग बैलेंसेस, फिर मैं लूंगा डेबिट, क्रेडिट,
और क्लोजिंग बैलेंस। और अब मैं इसको रन करूंगा तो देखिए आप, मेरे पास ऑप्शन आ गया ओपनिंग बैलेंसेस, डेबिट, क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंसेस का। तो ये, अब मैं इस रिपोर्ट को शेड्यूल करना चाहता हूँ और आई वांट टू सेव दिस कस्टम रिपोर्ट। तो यू कैन सी यहाँ पर एक, जब भी मैं ट्रायल बैलेंस पे जाऊँ मुझे बार बार ये ना करना पड़े कि ओपनिंग बैलेंस, डेबिट, क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सेव दिस एज अ कस्टम रिपोर्ट। सो आई हिट ऑन सेव कस्टम रिपोर्ट। तो जो विल आस्क कौन से कॉलम आपको देखने हैं, कौन से नहीं देखने। सो मैंने वो ऑलरेडी मैप कर ली है कि मुझे क्या देखना है क्या नहीं देखना। आई क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। सो आई सिलेक्ट मुझे क्या क्या चाहिए डिस्प्ले में, पेज नंबर, एनीथिंग, कैसा साइज, दिस ऑल यू कैन डू। आई क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड मैं यहाँ पर रिपोर्ट का नाम दे दूंगा कस्टम टीबी रिपोर्ट। तो मैंने अपनी कस्टम टीबी रिपोर्ट सेट कर ली। और रिपोर्ट की डिस्क्रिप्शन, रिपोर्ट with opening and closing balances. So I'll click on save custom report and now you can see, अब जब भी मैं यहाँ जाऊंगा रिपोर्ट सेक्शन, मैंने रिपोर्ट सेक्शन में गया, यहाँ पर आ रही है जनरल रिपोर्ट और एक साइड में एक बटन आ रहा है कस्टम रिपोर्ट। यू कैन सी दैट। सो आई हिट ऑन दिस कस्टम रिपोर्ट बटन एंड देन यू कैन सी कि मैंने एक यहाँ पर अपनी रिपोर्ट बना रखी है, दैट इज कस्टम टीपी रिपोर्ट। तो नाउ आई डोंट हैव टू डू दिस अगेन एंड अगेन, ये मेरा फॉर्मेट सेव हो गया है। ओके, so I hope you have got your answer. Similarly, you can do for invoice report and other balance sheet reports for all other things. ये अश्विनी जी का क्वेश्चन है कि आई होप जो प्रैक्टिस इन सीआरएम सेम है। नो, जो सीआरएम और जो प्रैक्टिस अलग अलग है, आप उसको एक बार चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो प्रैक्टिस अलग है और जो सीआरएम अलग है। जो सीआरएम इज प्योर, जो प्रैक्टिस इज फॉर क्लाइंट मैनेजमेंट एंड सीआरएम इज फॉर लीड्स को कैसे आपको मैनेज करना है, आपकी सेल्स पाइपलाइन को आपको कैसे मैनेज करना है उसके लिए। ओके, कैन, या कैन यू गो थ्रू लाइट ऑन हाउ टू डू जीएसटी 2B रिको इन जोगो एंड फाइल जीएसटी 3B फ्रॉम जोगो? डेफिनेटली विल कवर दैट ऑल्सो। अभी हम जीएसटी 3B और के ऊपर ही आएंगे, तो जस्ट अलाउ मी सम टाइम, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। ओके, तो अभी मैं क्विकली बता देता हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा शॉर्ट है। तो हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन जो बुक्स व्हेन पेमेंट आर रिसीव थ्रू पेटीएम, पेपैल। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी हमने ट्रांजेक्शन करी, लेट्स आपके क्लाइंट है या आपने खुद सेल करी योर फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर ₹30,000, और आपको जो पेमेंट आई है, आपने पेमेंट कलेक्ट करी है थ्रू पेमेंट गेटवे लाइक रेजर पे, इंस्टामोजो और एनी अदर पेमेंट गेटवे, और वहां पर आपको पूरे पैसे नहीं मिलते। उनके ट्रांजेक्शन फीस होती है, पेमेंट गेटवे के चार्जेस होते हैं 2%, और आपको जो पैसे मिलते हैं वो मिलते हैं 2% कट के। तो इस केस में हमें क्या करना, तो इस केस में हमारे को ध्यान रखना है कि जब हम इनवॉइस क्रिएट करेंगे तो जो पेमेंट हम कलेक्ट करेंगे, तो वो पेमेंट कलेक्ट करने के लिए हमें एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, दैट इज अ पेमेंट क्लियरिंग अकाउंट। सो व्हाट वी विल डू, हम जाएंगे अकाउंटेंट मॉड्यूल में, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, एंड विल क्लिक ऑन न्यू अकाउंट, और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे पेमेंट क्लियरिंग अकाउंट। अब लेट से वो पेपर, यहाँ पर जो पेमेंट्स आ रही है वो आ रही है थ्रू स्ट्राइप, पेपैल, रेजर पे, इंस्टा मोजो, पेमेंट क्लियरिंग, जो भी पेमेंट क्लियरिंग है, लेट से रेजर पे। तो मैं यहाँ पर एक अकाउंट खोलूंगा रेजर पे क्लियरिंग, और आई क्लिक ऑन सेव बटन। मुझे एक वेंडर भी बनाना पड़ेगा रेजर पे के नाम का, क्योंकि जो वो अपने चार्जेस काट रहा है 2%, उसके लिए मेरे पास उसके लिए मेरे पास यहाँ पर आता है रेजर पे का बिल, जो भी उनके प्लेटफॉर्म चार्जेस होते हैं, तो उस बिल को मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है एज अ एक्सपेंस। तो मैं यहाँ पर एक वेंडर बना रहा हूँ, रेजर पे वेंडर।
तो अब जब मैं इनवॉइस क्रिएट करूंगा, लेट्स से आई हैव प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सर्विसेज और एनी सर्विसेज टू एनी क्लाइंट, लेट्स से क्लाइंट एक्स अगेन, एंड मैंने आज की डेट में इनवॉइस बनाया और मैंने प्रोवाइड करी, लेट्स से टैक्स कंसल्टेंसी प्रोवाइड करी 25,000 रुपीज की विदाउट जीएसटी, अभी लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। और मैंने ये इनवॉइस क्रिएट कर दिया, लेकिन अब मुझे जो पेमेंट आएगी वो 25,000 में से 2% चार्जेस कट जाएंगे, यानी 500 रुपीज कट जाएंगे, और मुझे नेट अमाउंट मिलेगा 24,500 इन माई बैंक अकाउंट। तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर रिकॉर्ड पेमेंट पर क्लिक करूंगा। मुझे यहाँ पर अमाउंट 25,000 यहाँ पर मैं लूंगा, और इस पेमेंट को मुझे अपने कैश बैंक में नहीं लेना, मुझे पेमेंट जो आ रही है वो थ्रू रेजर पे आ रही है। तो मैं यहाँ पेमेंट मोड भी कंफिगर कर दूंगा और एक न्यू पेमेंट मोड ऐड कर दूंगा, दैट इज रेजर पे, एंड आई क्लिक ऑन सेव बटन। और यहाँ पर मैंने रेजर पे सिलेक्ट कर लिया, और जो पेमेंट आ रही है वो मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आ रही, वो रेजर पे के पास जा रही है। तो आई सिलेक्ट रेजर पे क्लियरिंग अकाउंट, और यहाँ से ये पैसा चला गया रेजर पे क्लियरिंग के पास। तो इनवॉइस तो पेड मार्क हो गया, लेकिन ये पेमेंट मेरे पास नहीं है, ये पेमेंट मेरे पास खड़ी हो गई, डेबिट हो गई, कि मुझे पैसा रेजर पे से लेना है। आप देख सकते हैं 25,000, because this money I have not received. Razorpay has received this money on my behalf, and he will reimburse out of this 25,000 after deducting their platform charges of rupees 500, 24,500, और 500 रुपये का जो बिल है वो भी मुझे पे करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ बिल सेक्शन में जाऊंगा, एक नया बिल बनाऊंगा, और ये जो बिल बनेगा वो रेजर पे वेंडर के नाम से बनेगा, और लेट से आज की डेट का ही है ये रेजर बिल 1। और मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा प्लेटफॉर्म फीस ऑफ रेजर पे, लेट से अभी मैं इसको आईटी और इंटरनेट एक्सपेंसेस में डाल रहा हूँ, एंड 500 रुपीज का बिल आना चाहिए उनका। और आई सिलेक्ट सेव एज ड्राफ्ट, कन्वर्ट टू ओपन, और अब मुझे इस बिल को पे करना है। तो मैं आइडियली इसे अपने बैंक अकाउंट से पे नहीं कर रहा, ये तो मैं पे करूंगा उसी के पेमेंट क्लियरिंग अकाउंट से। तो मैं यहाँ रिकॉर्ड पेमेंट पर क्लिक करूंगा, मोड की जगह पेमेंट सिलेक्ट करूंगा रेजर पे। पेमेंट कैसे हुई है, रेजर पे के क्लियरिंग अकाउंट से ही हुई है, और मैं इसे हिट कर दूंगा सेव बटन पर। अब आप देख सकते हैं रेजर पे से मुझे नेट जो अमाउंट लेना है वो 24,500 का है। और अब मेरे बैंक के अंदर वो अमाउंट शो हो रहा होगा, अभी क्योंकि मेरी बैंक स्टेटमेंट के अंदर वो अमाउंट शो नहीं हो रहा, क्योंकि ये रियल टाइम नहीं है। तो मैं बैंक के अंदर जाऊंगा, ऐड ट्रांजेक्शन में करूंगा, और रिसीट साइड पे करूंगा ट्रांसफर फ्रॉम अनदर अकाउंट, और ये पैसे मुझे आ रहे हैं रेजर पे क्लियरिंग से। आज की डेट में आ रहे हैं 24,500, 24,500, और मैं हिट करूंगा सेव बटन पर। और आप देख सकते हैं कि रेजर पे क्लियरिंग का पूरा बैलेंस जीरो हो गया। So in this way, you can record your online transactions where you are collecting payment online through any mode, that is Razorpay, InstaMojo, Paytm, PayPal. क्योंकि आजकल you can see every business is doing or collecting payment online through their websites and all these things. So all this can be managed through Zoho. Okay, all right. So now let's move to other things. तो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स इन Zoho when payments are received through different modes. Now we can talk about how we can do loan management. लोन मैनेजमेंट की लोन के ट्रांजेक्शन्स को हम Zoho बुक्स में कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए यू हैव टू क्रिएट चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट आपको क्रिएट करना होगा Zoho बुक्स के अंदर। रिपोर्ट अकाउंटेंट मॉड्यूल में जाके चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके यू हैव टू क्रिएट न्यू अकाउंट। और लेट्स से अगर आपका वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है या अदर लायबिलिटी है, तो आई सिलेक्ट अदर लायबिलिटी, फॉर एग्जांपल बैंक लोन, whichever loan you want to
उसके लिए हमें पास करना होगा जर्नल एंट्रीज। थ्रू जेवी वी कैन मैनेज अवर बैंक लोन। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन लोन टुडे ऑफ ₹5 लाख। तो मैं इसके लिए जर्नल में जाऊंगा, HDFC, और यू कैन मैनेज लाइक दिस। डेबिट वुड बी HDFC बैंक एंड क्रेडिट वुड बी बैंक लोन। तो इस तरीके से आप अपना बैंक लोन मैनेज कर सकते हैं इन Zoho Books. So I'll hit on save and publish button. So you can see this journal entry has been recorded, and you can go to report section and check your balance sheet also. So once I check this balance sheet, so you can see in liability side, bank loan is coming for ₹5 lakh. यहाँ पर you should note that in Zoho Books we cannot pass any entry relating to debtors and creditors, but all other entries can be managed through JV, through journal voucher. Only debtors and creditors entries are not there. Okay, now let's move further. So after this loan management, next part is to discuss about how we can do employee management. You know, if for employee management, we have dedicated software, or Zoho Books have dedicated software, that is Zoho Payroll. Zoho Payroll से आप मैनेज कर सकते हैं. बट अगर आप Zoho Payroll पे नहीं जाना चाहते, तो what you can do alternatively, you can create employee as a vendor. आप एम्प्लॉय को एज अ वेंडर क्रिएट कर सकते हैं, और फिर उस एम्प्लॉयज की सारी स्टेटमेंट आप जनरेट कर सकते हैं. ओके, सो आई होप there is no question about that. Now let's talk about depreciation, how we can manage depreciation, and how we can have fixed asset register in Zoho Books. Depreciation के लिए you can just pass all the journal entries in Zoho Books. Depreciation के लिए आप journal entries पास कर सकते हैं Zoho Books में. You can go to this accountant module and you can pass journal entries over here. But to manage fixed asset register right now, अभी Zoho में कुछ ऐसा फीचर नहीं है कि आप अपना fixed asset register मैनेज कर पाओ. But yes, there is one option, और other developer have created एक Zoho Creator करके ऐप है, Zoho Creator. तो Zoho Creator के अंदर आप किसी भी तरीके का ऐप डेवलप कर सकते हैं. मैंने देखा कई सारी को वर्किंग ऑफिस को या रियल एस्टेट बिजनेस को वो अपना ऐप डेवलप करते हैं, और उस ऐप को Zoho Books के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं. तो सिमिलरली फिक्स एसेट रजिस्टर का भी ऐप है Zoho Creator के अंदर, फिक्स एसेट रजिस्टर Zoho Creator. तो Zoho Creator के अंदर फिक्स एसेट रजिस्टर का ऐप है. तो वहां से आप अपने फिक्स एसेट की IT एसेट्स को जो भी है उसे मैनेज कर सकते हैं. अदरवाइज देर आर मल्टीपल थर्ड पार्टी ऐप, और you can also, if you are a big organization, you can customize your app, you can create your own app as per your need or requirement, and you can integrate that app with Zoho Books. यहाँ पर मल्टीपल एप्स अवेलेबल हैं Zoho Creator के अंदर. फॉर एजुकेशनल बिजनेसेस, फॉर मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, लॉजिस्टिक्स के लिए है. ये डिफरेंट एप्स हैं. जैसे फाइनेंस के अंदर देखा जाए तो कस्टम एक्सपेंस है, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट ऐप है, लोनर मैनेजमेंट ऐप है, कॉर्पोरेट ट्रेवल मैनेजमेंट ऐप है, और ये ऐप इंटीग्रेट हो जाते हैं Zoho Books के साथ. हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज के लिए भी है, लेट्स से होटल मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, लॉन्ड्री मैनेजमेंट, जिम मैनेजमेंट. सो देयर आर मल्टीपल एप्स. फॉर दैट यू नीड टू चेक Zoho Creator. मिस्टर नीरज ने क्वेश्चन पूछा है, कैन आई अपलोड लोन अकाउंट स्टेटमेंट लाइक बैंक स्टेटमेंट, हाउ टू हैंडल CC अकाउंट, सिंस CC अकाउंट विल कंटेन ऑल डेटर क्रेडिटर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स एंट्रीज. उसके लिए आप बैंक अकाउंट में ही उसे आप फिर ऐड कर सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड को जिस तरीके से मैनेज करते हैं फिर आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं. क्योंकि हम Zoho Books के अंदर एक और ऑप्शन होता है कि टू ऐड क्रेडिट कार्ड. आई विल शो यू दैट ऑल्सो. तो जैसे हमने अभी बैंक अकाउंट ऐड करा था, सिमिलरली वी कैन ऐड अवर क्रेडिट कार्ड ऑल्सो. ऐड मैनुअली,
यहाँ पर ऐड क्रेडिट कार्ड. So in similar way you can map your CC limit or OD limit account also. Okay, so next part is, so I hope you are clear how we manage depreciation and how we can do fixed asset register management. Now let's talk about how we can record security deposit. Sometime हम कई बार सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव भी करते हैं या सिक्योरिटी डिपॉजिट पे भी करते हैं. For example, we are into rental business or co-working office business, or maybe we are into real estate business. So we collect a security deposit from the customers, and that too is refundable at the time when they are leaving or disassociating with our services. So उस केस में हम सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए हम इनवॉइस में ही प्रोविजन है कि हम जब अपना इनवॉइस बनाएंगे, व्हेन वी क्रिएट अ इनवॉइस, तो यहाँ पर हम अपनी रेंटल सर्विसेज का एक आइटम लाइन दे सकते हैं और दूसरा एक और लाइन आइटम हम ऐड कर सकते हैं फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर. तो नाउ वी हैव टू ऐड दिस एंड देन हमें इसे डिफरेंटली मैप करना है. मुझे अपनी सेल में मैप नहीं करना बिकॉज ये मेरी सेल्स का पार्ट नहीं है. फर्दर दिस इज ऑल्सो रिफंडेबल, तो आई एम नॉट चार्जिंग GST ऑन दिस. तो मुझे इसे अलग से मैप करना है, तो मुझे यहाँ पर अलग से अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा. सो आई विल डू दैट. मुझे एक सेपरेट चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा. सो आई विल गो टू दिस accountant module, and there I will create security deposit from customer and map this amount into security deposit from customers. So I hope I am clear about this also. Okay. Next, let's talk about TDS filing. How we can file our TDS returns and how we can prepare TDS calculation or we can do TDS computation. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? Zoho Books के अंदर whenever you create a invoice or whenever you create a bill, when you go to purchases, जब आप अपना बिल रिकॉर्ड करते हैं, let's say मैं एक बिल रिकॉर्ड कर रहा हूँ for bill, let's say I have taken services from any CA. Let's say I have taken CA services for ₹50,000. अब मुझे उसका TDS काट के पे करना है अंडर सेक्शन 194J. तो मैं व्हाट आई विल डू, आई सिलेक्ट रेलेवेंट सेक्शन ओवर हियर, प्रोफेशनल फीस, और यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आ रहा है 45,000, और मैं इसे क्लिक करूंगा सेव बिल नंबर और डेट. लेट्स से आज की डेट का ये बिल नंबर 00/01 and click on save button. Account field, okay, account field, let's say this is consultant expense or professional charges, so I'll put this into consultant expense, or you can put this into professional charges. So I'll click on save button. Now you can see this bill has been prepared and expense has been debited into consultant expense debit 50,000, account payable 45,000, TDS payable 5,000. Now when you go to reports and you see TDS summary report, so you can see this is already preparing. You can see कि यहाँ पर TDS summary report already बन रही है. जो TDS आपको जमा करानी वो सारी यहाँ पर रिपोर्ट प्रिपेयर हो गई. और यू कैन एक्सपोर्ट दिस. उसका पैन नंबर भी आएगा यहाँ पर, क्योंकि अभी मैंने वेंडर का पैन नंबर नहीं डाला, तो यहाँ पर वेंडर का पैन नंबर, आई थिंक TDS चालान जमा कराने के लिए, रिटर्न फाइल करने के लिए हमें जो रिलेवेंट होता है सेक्शन किसका करा रहे हैं, वो वेंडर नेम, वेंडर पैन नंबर, अमाउंट पेड एंड TDS डिडक्टेड, इतनी ही इंफॉर्मेशन रिलेवेंट होती है. तो दैट इज अवेलेबल विद अस एंड वी कैन एक्सपोर्ट दिस इनटू PDF और एनी एक्सेल फॉर्मेट. तो यहाँ पर सारे सेक्शन का TDS आपको शो होता है. अभी जोहो बुक्स के अंदर डायरेक्ट TDS फाइलिंग का ऑप्शन नहीं है. आई अटेंडेड लास्ट जोहो फाइनेंस वर्कशॉप,
सो जोहो ने वहां पर डिस्कस करा था कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम डायरेक्ट, जैसे हम जीएसटी फाइलिंग की बात कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में फ्यूचर में वी कैन फाइल टीडीएस रिटर्न ऑल्सो थ्रू जोहो। यस आरती मैम, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आपने हैंड रेस करा हुआ है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन आरती मैम? ओके, so this is the TDS which we can manage directly through Zobooks. We can generate TDS reports from here. Okay, now let's move further. TDS filing के बाद we can also manage multi-currency transaction into Zobooks. आप Zobooks के अंदर मल्टी करेंसी ट्रांजेक्शन्स क्रिएट कर सकते हैं अगर आपका कोई कस्टमर इंडिया के बाहर का है और आप उसे इनवॉइस रेज करना चाहते हैं। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि दिस फीचर इज नॉट अवेलेबल इन जोहो बेसिक प्लान। मल्टी करेंसी फीचर इज अवेलेबल इन जोहो हायर वर्जन प्लान। सो I'll click here, I'll share my screen, and then I'll create one customer into multi-currency. I hope you can see my screen. Let's say I have one customer, his name is Peter, और अब ये जो कस्टमर है ये ओवरसीज है, दैट इज इन यूएसडी डॉलर्स। अब मैं इसे जो इनवॉइस रेज कर रहा हूँ यूएसडी डॉलर्स में। जस्ट अ सेकेंड। सो वी कैन क्रिएट कस्टमर इन यूएसडी एंड यहाँ पर एक्सचेंज रेट ऑलरेडी आ रहा है एंड यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई दिस। सो वी कैन क्लिक ऑन सेव बटन। तो अब जब भी मैं इस पीटर को इनवॉइस रेज करूंगा, whenever I create an invoice to this Peter, so this will not be in INR, this will be in foreign currency. Let's say मैंने इसे $100 का इनवॉइस रेज करा, टैक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज दी, और लेट्स से मैंने इसे $100 का इनवॉइस रेज करा। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट करते हैं इसको। सो दिस इनवॉइस इज इन मल्टी करेंसी $100, और मैं इसे कन्वर्ट करूंगा माँ के सेंट। तो माँ के सेंट में नीचे इंडियन रुपीज में भी अमाउंट आ रहा है ₹8,350, और INR में भी फॉरेन करेंसी में भी अमाउंट आ रहा है $100, और इंडियन रुपीज में भी अमाउंट आ रहा है। और ये जो एक्सचेंज रेट है इसे आप यहाँ पर फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यू कैन सी यहाँ पर एज ऑन 16 फेब ऑटोमेटिकली एक्सचेंज रेट पिक कर रहा है, तो आपको इसे यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो चेंज दिस एक्सचेंज रेट ऑप्शन। सो आई होप यू कैन ऑल्सो मैनेज, यू विल नो कि आप कैसे आप फॉरेन करेंसी के इनवॉइस को भी रेज कर सकते हैं। Okay, now let's move to next part after this multi-currency. WhatsApp integration, I have already informed you, आपको WhatsApp integration भी Zobooks के साथ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। फॉर WhatsApp integration you have to go to your Zobooks। आपको सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है WhatsApp। सो वट एवर यू इनवॉइस यू आर क्रिएटिंग, वो आप डायरेक्टली अपने कस्टमर के क्लाइंट के व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। यहाँ से आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, और यू कैन लर्न मोर अबाउट दिस फ्रॉम दिस व्हाट्सएप इंटीग्रेशन। यू कैन सेंड इंस्टेंट मैसेजेस, देयर आर सम टेम्पलेट्स अवेलेबल, एंड यू कैन अटैच योर इनवॉइस ऑल्सो। तो यू कैन
properly integrate your WhatsApp into this Zoho Books. So this is a very best feature जिसको आप use कर सकते हैं. Okay. Now next thing is थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस. जो बुक्स के अंदर काफी सारे थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन भी अवेलेबल है. थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन भी है और मार्केट प्लेस में भी कई सारे एप्स अवेलेबल हैं जिनको आप इंटीग्रेट कर सकते हो. लाइक दिस. जैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन में अगर हम क्लिक करते हैं तो जोहो का इंटीग्रेशन जोहो सीआरएम के साथ है, बिगिन के साथ है, पीपल, सेल्स आईक्यू, मेल, साइन, एनालिटिक्स, जोहो प्रोजेक्ट्स, डेस्क, एक्सपेंसेस, नोटबुक, व्हाट्सएप, जी सूट, स्लैक, डेस्क, जैपियर, उबर, ईमेल इंटीग्रेशन, जो क्लिक, ट्विलो. ट्विलो इज लाइक एसएमएस भेजने के लिए. तो ये थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन अवेलेबल है जहां पर आप जो बुक्स को इंटीग्रेट कर सकते हो बाकी दूसरी चीजों के साथ. ओके. सो आफ्टर दिस इंटीग्रेशन पार्ट, I think I have discussed each and every point. If you still have any queries or something like that, so you can contact me. I have shared my WhatsApp number. I have shared my email ID. अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी आती है या कुछ भी आपको असिस्टेंस होता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर दिस. सो नाउ लेट्स हैव डिस्कशन अबाउट क्वेश्चन एंड आंसर्स. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और समथिंग लाइक दैट, तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. यस. एनी क्वेश्चंस? यस. जीएसटी के ऊपर भी हम आते हैं एक बार. लेट्स कम टू रिकंसिलिएशन पार्ट. हम यहाँ पर जब जाते हैं होम सेक्शन में, लेट मी शो यू दैट स्क्रीन. दो बुक्स के अंदर हम डायरेक्टली अपनी GSTR 1 और GSTR 3 भी फाइल कर सकते हैं. यू हैव टू गो टू सेटिंग्स. सेटिंग्स में जाने के बाद यू हैव टू पुट योर GST नंबर और GST रजिस्ट्रेशन डेट. सो वंस यू सेटअप, उसके बाद आप अपनी GST 1 फाइल कर सकते हैं, GST 3 भी फाइल कर सकते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट सबसे पहले GSTR 1 कैसे फाइल कर सकते हैं. तो GSTR 1 फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले, जैसे ही वेन एवर यू क्रिएट अ इनवॉइस, तो यू विल गो टू GST फाइलिंग सेक्शन. मैं आपको दिखाता हूँ कैसे. यू हैव टू गो टू दिस GST फाइलिंग और यहाँ पर ऑप्शन आता है सेल्स रिटर्न, दैट इज GSTR 1. गो टू समरी. तो जैसे ही मैं समरी पर क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी कि यहाँ पर GSTR 1 मेरी यहाँ पर रेडी हो रही है. यहाँ पर प्रीवियस मंथ सिलेक्ट करूंगा. प्रीवियस मंथ. सो प्रीवियस मंथ में यू कैन सी यहाँ पर मेरी B2B, B2C यहाँ पर आ रही है. ये GSTR 1 मेरी इस तरीके से प्रिपेयर हो रही है और मैं यहाँ पर इसे जेसॉन एक्सपोर्ट करके भी, कई बार हम दूसरे अकाउंटिंग टैक्सेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं लाइक कंप्यू टैक्स, कंप्यू GST, या फिर कई बार हम यूज करते हैं क्लियर टैक्स, और वहां पर हम जेसॉन फाइल हमें चाहिए होती है. तो अगर हम कंप्यू टैक्स से या कंप्यू GST से फाइल कर रहे हैं या किसी और टैक्सेशन सॉफ्टवेयर से फाइल कर रहे हैं, तो we can export JSON file from here and there directly we can import JSON file. तो इस तरीके से we can prepare GSTR 1. और similarly we can prepare GSTR 3 भी. यहाँ पर GSTR 3 भी एकदम आपकी प्रिपेयर हो रही है. You can see previous month आना चाहिए एक बार. previous month आपकी टेबल सारी यहाँ पर रेडी हो रही है. 3.1, 3.1.1, 3.2, 4 eligible ITC, टेबल नंबर 5 वैल्यू ऑफ एग्जाम रिलेटेड और नॉन GST इनवर्ट सप्लाई. तो ये सारी यहाँ पर GST 3 भी प्रिपेयर हो रही है. अभी मेरा यहाँ पर मैंने इसको इंटीग्रेट नहीं किया हुआ. जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है फाइलिंग का. सो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है GST 3 भी फाइलिंग का. आई शो यू दैट.
आपको सबसे पहले एपीआई अनेबल करने होते हैं। एपीआई अनेबल करने के बाद आपकी मार्क एज प्रीवियस रिटर्न एज फाइल, जितनी भी प्रीवियस रिटर्न है वो मार्क होनी चाहिए, एज अ फाइल होनी चाहिए। ये आपकी 3B एकदम रेडी हो गई। 3B रेडी होने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है पुश डेटा टू जीएसटीएन पोर्टल, पुश ट्रांजेक्शन टू जीएसटी पोर्टल। तो जैसे ही आप पुश ट्रांजेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको सारा जितना भी डेटा है दैट विल बी पुश्ड इनटू जीएसटी पोर्टल। पुश करने के बाद यू हैव टू गो टू जीएसटी पोर्टल, वहां पर लॉग इन करना पड़ता है, और देन you have to just verify all the details, and then in last file through EBC। EBC से फाइल करने के बाद you can file your GST returns वहां पर जाके चेक करने के बाद। Now let's talk about GST reconciliation। जीएसटी रिकंसिलेशन अगेन करने के लिए आपको एपीआई एक्सेस देना पड़ता है। यू हैव टू गो टू योर जीएसटी पोर्टल, वहां पे प्रोफाइल में जाना पड़ता है, देन यू हैव टू अनेबल योर एपीआई एक्सेस। एपीआई एक्सेस देने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है इंपोर्ट ऑल ट्रांजेक्शन फ्रॉम जीएसटीआर टू बी। तो आप टू बी का सारा डेटा इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर जोहो उसको मैच करता है कि कितने आपके बिल्स हैं और कित कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आपकी मैच हो रही है। आपको इस तरह की एक टेबल बनी हुई आती है कि कुछ बिल्स हैं वो आपके मिस हो रहे हैं जीएसटी, कुछ बिल्स हैं जो मिस हो रहे हैं जो बुक्स में, कुछ बिल्स हैं जो पार्शियली मैच हो रहे हैं। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट आईटीसी रिकंसिलेशन। और जो बिल्स आपके मैच हो रहे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस तरीके से यू कैन डू योर रिकंसिलेशन फ्रॉम जोहो बुक्स। यस, समवन हैज आस्क्ड प्लीज शेयर योर ईमेल आईडी। तो मैं एक बार फिर से वो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यू कैन check my contact details। Yes, so I hope I have answered maximum questions. Any other questions? I was using free version earlier, later using another email ID. I have subscribed for a package available for CA। Now I can import entire data from old account to new account। आप कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो अप्रोच जोहो। जोहो को आप मेल कर सकते हैं कि यू हैव चेंज ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम बैकएंड, मे बी दे कैन शिफ्ट योर डेटा फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन। अदरवाइज नहीं तो आपको एक्सेल इंपोर्ट के थ्रू करना पड़ेगा। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा मिस्टर दीपक आनंद जी। यस, तो आज के सेशन के लिए आई थिंक इतना ही। बाकी आई होप आपको 2 दिन में काफी नॉलेज मिली होगी जो बुक्स के ऊपर। और आप सब जो हमारा बेनिफिट है सीएमपी स्कीम के अंदर, जो इनिशिएटिव है सीएमपी का, उसको आप यूज करेंगे और अपने लिए और बाद में अपने क्लाइंट्स के लिए भी जोहो इम्प्लीमेंट करेंगे। यू विल माइग्रेट फ्रॉम टेली टू जोहो बुक्स, और जितने भी ऑटोमेशंस के फीचर है उनको यूज करेंगे। इसके अलावा भी और भी कई सारे ऑटोमेशंस हैं जिसके लिए मैं फिर से एक बार कोशिश करूंगा और आपके साथ डिस्कस करूं कि किस तरह से वेब बुक्स हम कर सकते हैं, रिपोर्टिंग टैग्स हम कर सकते हैं। सो फॉर दैट हम हो सकता है कि एक बार फिर से कभी एक सेशन और ऑर्गेनाइज करें। किसी का क्वेश्चन है हाउ इट इज बेटर देन टैली सिंस सो मेनी सॉफ्टवेयर हैव टू इंटीग्रेटेड सेपरेट लॉगिन रिक्वायर्ड पर क्लाइंट। पर क्लाइंट आप कह सकते हैं कि आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप सारे क्लाइंट्स को एक जगह देख सकते हैं, बट हाँ क्लाइंट को हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेपरेटली पे करना पड़ेगा। ये आप कह सकते हैं। लेकिन एक ही ऑर्गेनाइजेशन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इफ योर क्लाइंट इज अर्निंग मनी और अगर उसकी अच्छी टर्नओवर है तो देन डेफिनेटली उसको पे करने में कोई हार्म नहीं है, क्योंकि जोहो इतना भी कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं है। लेकिन हाँ अगर क्लाइंट का बिजनेस नहीं है और वो 700-800 रुपीज पर मंथ नहीं एक्सपेंस कर सकता, खर्चा कर सकता, तो फिर उसके लिए जोहो कॉस्टली हो सकता है। लेकिन अगर उसके लिए वैसे तो 25 लाख की अगर टर्नओवर है किसी की, तो उसके लिए जोहो तो फ्री है ना। इफ यू आर हैविंग टर्नओवर अप टू 25 लाख रुपीज देन जोहो इज फ्री फॉर यू।
बट अगर आपकी टर्नओवर उससे ज्यादा है तो डेफिनेटली क्लाइंट और एनीवन कैन अफोर्ड दिस। सीए ज्योति का क्वेश्चन है, कैन वी मैनेज क्लाइंट बुक्स फ्रॉम आईसीआई कस्टम प्लान। जो आईसीआई का कस्टम प्लान है वो सिर्फ आपके लिए है, उसमें और आपके क्लाइंट्स आप उसमें मैनेज नहीं कर सकते। जो आईसीआई का कस्टम प्लान है वो आपके लिए है, क्लाइंट को अलग से बाय करना पड़ेगा। सीए अंकित का क्वेश्चन है, हाउ टू बिकम जोहो सर्टिफाइड ट्रेनर। इसके लिए आप जोहो की वेबसाइट है जोहो ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। जोहो का एक साइट है जोहो ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, आप गूगल पे लिखेंगे, मैं आपको शो कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर जोहो ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म, यहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं। और दिस वन, आई थिंक वो शायद लिंक अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहा। आई चेक दैट लिंक और आई कम बैक अगेन टू यू। मैं एक बार वो लिंक चेक करूंगा क्योंकि वो यहीं पर जोए का सबसे पहले लिंक आता था यहाँ पर। सो यू कैन चेक दैट, और अदरवाइज आई शेयर दैट विद यू। वेयर कैन वी गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन, उसके लिए भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। So I hope maximum questions can be covered. So let's close for today. And I hope you found this very useful. Thank you very much for joining this and attending this till last. Uh-huh. Thank you, Kunal sir, for this 2 day wonderful session. It must have helped the participants, and I want to thank the participant who stayed there for 2 days. And approx 55 participants participated there, and almost same ratio was there on day two also. It means you are capable enough to take session, and you are quite engaging, sir. Thank you And very it much. was a wonderful session. Thank you, sir. Thank you so much. I hope to see you in future sessions, sir. Thank you so Thank you. much. Sure, sir. Sure. Thank you very Thank much. you. Thank you all. Thank you, sir. Thank you. Thank you.